morning students, welcome to Sagar College. So today we will discuss the physical chemistry part of OUAT exam question and the text booklet series is A. Hela. So I will only discuss the physical chemistry part questions. So starting from question number 74. In the following statements, the statements are ideal gases are liquefied only at very low temperature, ideal gases cannot be liquefied, ideal gas behavior is observed by real gases at low pressures, and option D is ideal gases do not exist. The correct statements are ये जो चार्टा स्टेटमेंट देइची ताहले तमे लिखिबो आ भितरे तमर ऑप्शन देइची फर्स्ट ऑप्शन देइची ए बी सी डी फोर ऑप्शंस आर करेक्ट बी रे देइची ए बी सी आर करेक्ट सी रे बी सी डी आर करेक्ट एंड डी रे सी एंड डी आर करेक्ट सो वी विल एनालाइज द ऑप्शंस वन बाय वन आइडियल गैसेस आर लिक्विफाइड ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर्स आइडियल गैस मीन्स आइडियल गैस जिते बळे आमे देखुचे आमे कोन कंसीडर करूचे ना से माने दे हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल एंड मोलिकुलर वॉल्यूम इज जीरो दे हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम ए दुटा जिनस आमे कंसीडर करूचे तेणु जेहेतु सेमानक भितरे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नील तमर केते बेले गोटे गैसटा लिक्विफाई हबो जेते बेले आमे लिक्विफाई आने प्रेशर अप्लाई करिबा ताले जेते बेले सेमानक भितरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिबो सेमाने परस्पर को टाणीबे सेमाने दे विल गेट कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड दैट आइडियल गैसेस have no intermolecular forces of attraction so they are liquefied only at very low temperature option is wrong then second option ideal gases cannot be liquefied yes because their intermolecular force of attraction is negligible third option ideal gas behavior is observed by real gases at low pressure ame janiche real gases obey ideal behavior only at high temperature and low pressure hela so this option is correct and fourth is ideal gases do not exist actually no gas is 100% ideal eta gote theoretical concept ideal gas tenu actually ideal gases do not exist so now which options are correct only option A is wrong option B is correct option C is correct and option D is correct so right answer is C hela which are the options B C and D then go to the next question question number 76 in the evaporation of water the entropy options are decreases increases does not change sometimes increases sometimes decreases you see in the evaporation of water entropy is what your degree of randomness or disorderness जेते गोटे सिस्टम रे रैंडमनेस बा डिजॉर्डरनेस अधिका रहिबो एंट्रोपीटा सेते अधिका रहिबो यस और नो हैला एंट्रोपी हैला गोटे मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिजॉर्डरनेस ताहले वाटर ता थिला लिक्विड वाटर जेते बेले लिक्विड थिला बर्तमान इवापोरेट हो गला वेपर फॉर्म को गला सेते बेले कोन होबो मॉलिक्यूल्स गुडा को बेसी फ्री हे गले परस्पर टू काहे की ना हम टेम्परेचर देला परे बा से माने तमरो पाइले लिक्विड रो इवापोरेशन प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस ताहले जेते बेले वाटर गुडा को इवापोरेट हेले तांकर मॉलिक्यूल भितरे सेपरेशन ता बढ़ी गला जेते बेले सेपरेशन ता बढ़ी गला सेमानकर रैंडमनेस बा डिजॉर्डरनेस बढ़ी गला ताले रैंडमनेस बा डिजॉर्डरनेस बढ़ी गला माने एंट्रोपी विल इनक्रीज है ताले लिक्विड रो वेपर फॉर्म को गला रैंडमनेस बढ़िला डिजॉर्डरनेस बढ़िला तेणु एंट्रोपी विल इनक्रीज ताले द ऑप्शन इज 76B then come to question number 79 the question is semi permeable membrane is that which permits the passage of
Option A solute molecules only, option B solvent molecules only, C both A and B, D neither A nor B. I have already told you in the solution chapter, semi-permeable membrane is a membrane which allows only the flow of solvent molecules through it. Semi-permeable membrane है selective permeable से solute molecules को ता through रे pass करिया को दिएनी, only the solvent molecules can pass through it. So आमर option कौन होगा? Option कौन दीची? Semi permeable membrane permits the passage of solvent molecules only, that is option B. है आम पढ़ी रिभर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रान. रिभर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस रे कौन हुए? रिभर्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जी ताठू अधिका प्रेशर देकी आम प्रोसेसटा को रिभर्स करूँ जोटा डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. समुद्र पानी जो चेन्नई फेनाई रे तुम कौन देयर आर नो फ्रेश वाटर सोर्सेस देयर, से माने दे यूज सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस बाय द प्रोसेस ऑफ रिभर्स ऑस्मोसिस. ताले रिभर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस रे कौन कले? से माने सी वाटर को गोटे साइड रे रखिले, वाटर को गोटे साइड रे रखिले. ऑस्मोटिक प्रेशर एटी रिभर्स ऑफ ऑस्मोसिस ऑफ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड. तेणु कौन हम ना सेलाइन वाटर रु वाटर टा थ्रो सेमी परमिएबल पळे आसीबो मेम्ब्रान टू द अदर साइड ऑफ दिस रिभर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस रे सेमी परमिएबल मेम्ब्रान देकी सी वाटर रु वाटर टा खाली पास करिक एपट साइड को पळे आसीबो लिविंग द सॉल्ट्स बिहाइंड. सॉल्ट गुडा कहला सॉल्यूट, सॉल्ट गुडा को रही जिवे, से माने सेमी परमिएबल मेम्ब्रान रे पास करिवेनी, खाली पास करिक पळे आसीबो किए? वाटर. So in this way the sea water is used for drinking purposes by removing the salts from them by using reverse osmosis process. Hala. So this is your work of semi permeable membrane. It allows the flow of only solvent molecules through it. Then next question 81. When 1 coulomb of electricity is passed through an electrolytic solution, the mass deposited on the electrode is equal to. Question is, again I am repeating the question. When 1 coulomb of electricity, question number 81. When 1 coulomb of electricity is passed through an electrolytic solution, है गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन थ्रो रे आमे 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कले. ताले क्वेश्चन अछि द मास डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड रे द मास डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू से सब्सटेंस रो कहा संगे समान, है इक्विवेलेंट वेट ऑप्शन ए, मोलिकुलर वेट ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑप्शन सी and option D is 1 gram. You see तुम्हारा Faraday law of electrolysis first law कौन पढ़ीच ना the mass of the substance deposited is proportional to the quantity of electricity passing through the electrolyte. Yes or no? ताले W is proportional to Q. Yes or no? Mass of substance deposited at the electrode during electrolysis is proportional to the quantity of electricity flowing through this electrolyte. Then Q is equal to you know I into T. I is current in ampere and T is time. So W is proportional to IT. Q is proportional to IT. So Q is equal to IT. So W is proportional to IT. That is W is equal to ZIT. This Z is called electrochemical equivalent of the substance. Yes or no? So वर्तमान देख ताहले आमे कौन जानीचे when 96500 coulomb of electricity is passed through the electrolyte, then how much substance is deposited? 1 gram equivalent of the substance is deposited at the cathode. Yes or no? So 96500 coulomb electricity pass कले कौन deposit होउची ना 1 gram equivalent of substance is deposited at cathode. हला
बुझिपार when 1 coulomb of electricity is passed through the electrolyte ताले जतेले 1 coulomb electricity आमे पास करिबा ताले कोन हबो ना 1/96500 ग्राम equivalent of substance will be deposited at the electrode cathode हैला ताले this 1/96500 that is called electrochemical equivalent of the substance. So this is electrochemical equivalent of substance deposited at the cathode. Are you clear? ताले 96500 coulomb electricity pass कले 1 gram equivalent of the substance deposited होची at the electrode. ताले 1 coulomb pass कले 1/96500 gram equivalent of the substance is deposited at the cathode. That is called electrochemical equivalent of the substance. ताले question ले दो देइची when 1 coulomb of electricity is passed through an electrolyte solution, the mass deposited on the electrode will be electrochemical equivalent. ताले 81 option will be answer is C. हैला 81 रो answer is C. बुझिपारल समस्ते हैला जेमती तमरो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हैला सपोज आमे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन देकी इलेक्ट्रिसिटी पास कले ताहाले आमे जदी ताले 96 when electricity is passed through silver nitrate solution silver will be deposited at the cathode. So 96500 coulomb of electricity that will deposit 1 gram equivalent of silver at the cathode. ताले 1 gram equivalent that is silver केते 108 gram. ताले जते बेले आमे 1 coulomb of electricity pass करिबा that will how much of silver will be deposited 108 by 96500 that is I think 0.0011. This is called your what? This is called electrochemical equivalent. हैला साले this is called electrochemical equivalent of your silver. बुझ पारला हैला ताले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तेणु 1 coulomb of electricity माने that will deposit electrochemical equivalent of substance at the cathode. 96500 coulomb रे 1 gram equivalent. So 1 coulomb रे electrochemical equivalent of substance will be deposited at the cathode. Then next question 83. This is a question on kinetics. The plot between concentration versus time for a zero order reaction. हैला ताले plot between concentration versus time for a zero order reaction is represented by तुमको different graphical representation देइची कौन देइची ना ऑप्शन ए रे देइची concentration versus time in this way देइची then option B रे देइची ln C ln concentration versus time एमती देइची C रे ऑप्शन देइची concentration versus time हैला D रे देइची concentration versus time ए टाइप रे देइछि. सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ देखो concentration versus time जीरो ऑर्डर रिएक्शन तुमको कहिछि आमे पूर्वरु काइनेटिक्स क्लास रे मु कहिछि जेते बेले तमे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूछ फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर एटसेट्रा रे तमे कोन करिवो जो इक्वेशन अछि रेट इक्वेशन अछि ताको कोन करिवो y = mx + c फॉर्म को आगे नेई आसीबो तापरे तमे yx पाई गले तमे पाई गलो कहा वर्सेस कहा को तमे प्लॉट करिवो ताले जीरो ऑर्डर रिएक्शन रे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन K = R0 minus R0 minus RT by T. Yes or no? This is the initial concentration of the reactant. This is concentration after time T divided by the time taken. So K = R0 minus RT by T.
So that implies Kt is equal to R naught minus RT. Yes or no? Now we will bring this equation to the form of equation of straight line, that is y is equal to mx plus c. So K बर्तमान देखो RT को bring करो this side को, bringing RT to this side. So RT is equal to R0 minus KT. Yes or no? बर्तमान मैं RT टाको नहीं आसली एपट को, R0 थिला in that side and KT taking to this side, so minus KT. Now the equation is of the form y is equal to mx plus c. ताको आउ टिके बेटर अरेंज करी दियो. RT is equal to minus KT plus R0. Yes or no? Now the equation is of the form y is equal to mx plus c. So this is y, this is m minus k, t is x, R0 is c. Yes or no? So now the equation is of the form y is equal to mx plus c. So concentration, RT means what? Concentration at time t. So concentration y axis रे नेले x axis रे कोन नबा t, ताले concentration versus time. देखो कोठी अछि concentration versus time is a कोन straight line. आउ कोन हबो? The slope is negative. So slope negative हेले nature of the graph will be like this. बुझी पारलो? ताले ऑप्शन कोटा करेक्ट हबो? ऑप्शन डी, concentration versus time is a straight line and as the slope is negative, the nature of the graph will be like this. जदि slope टा positive थांता, the nature of the graph would be like this. बुझी पारलो? हैला ताले हमर एठी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले लोन टर्म बिल्कुल नाही, तेनु ए तीनटा जाक ऑप्शन सबु रंग. ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. हैला ताले आंसर इज डी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. Question number 88. In a chemical reaction, two reactants take part. That means the chemical reaction is like these two reactants, A plus B, giving rising to what? Product. Hala. In a chemical reaction, two reactants take part. The rate of reaction is directly proportional to the concentration of one of them and inversely proportional to the concentration of other. बुझी पारलो? ताले rate of reaction suppose directly proportional to concentration of one of the reactant and inversely proportional to the concentration of the other. एठी तमे B लिखी कि एठी भी A लिखी पार, there is no problem. So rate is directly proportional to concentration of one of reactant and inversely proportional to the concentration of other reactant. The order of the reaction will be, ताले option देछि 0 1 2 4. What will be the order of the reaction? ताले वर्तमान देखो, rate is proportional to A, rate is proportional to 1 by B. So rate is proportional to A by B. Yes or no? That implies rate is equal to K into A B to the power minus 1. Yes or no? This is the expression, rate is equal to K A B to the power minus 1. So what will be the order of the reaction? With respect to A, order is equal to, with respect to A, this is 1, with respect to B, that is minus 1. ताले हमें कौन करी भाई दीटा को मिसेई देले, that is the overall order of the reaction. So 1 minus 1, that is equal to 0. So the order of the reaction will be 0. Option A is correct. Correct option is option A. 0 order reaction. एठी तो मैं B लिखी कि एठी A लिखिले, the same answer will become, that means the order of the reaction will be 0. बुझ पारला? हैला. So now we will go to the next question. That is question number 90.
Question number 90. Which graph will show equilibrium condition? चार्टा ग्राफ देइछि कोटा तमे देखैबो जे को ग्राफटा इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो करूछि हला. This is a question from chemical equilibrium. This is rate, time, then एटा ऑप्शन ए देइछि, ऑप्शन बी देइछि, this is rate, this is time, हला. ऑप्शन सी देइछि रेट, टाइम, ऑप्शन डी देइछि नॉन ऑफ दीज. हला ताले कुह को ग्राफटा शो करूछि इक्विलिब्रियम कंडीशन. देख इन द केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट विथ पैसेज ऑफ टाइम आमर रिएक्शनटा होछि जेते बेले व्हेन रिएक्शन स्टार्ट कला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंटटा मैक्सिमम थिला, प्रोडक्ट थिला 0 नुहे कि आमे जेते बेले सपोज ए रु प्रोडक्ट हैला बी ताले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंटटा मैक्सिमम थिला, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्टटा 0 थिला हैला. ताले रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the reactant. ताहाले जेते बेले इनिशियली concentration of reactant maximum अछि ताहाले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टा अधिका रहिबो रेट ऑफ रिएक्शन टा. यस और नो काहे कि ना प्रोडक्ट 0 अछि, नो बैकवर्ड रिएक्शन. धीरे धीरे कोन हबो concentration of the reactant will decrease काहे कि ना रिएक्टेंट धीरे धीरे निजे रिएक्ट करी के प्रोडक्ट फॉर्मेशन करिवे. ताले इनिशियली रिएक्टेंट रो concentration मैक्सिमम थिला, प्रोडक्ट रो concentration 0 थिला. तापरे धीरे धीरे रिएक्टेंट तेणु रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टा कोन थिला बेसी थिला, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किछि नथिला. धीरे धीरे कोन हैला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टा डिक्रीज करी करी चलिबो काहे कि ना रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हे चलिबो. ताहले कोन हबो धीरे धीरे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज. ताले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल डिक्रीज विथ पैसेज ऑफ टाइम. रिवर्सिबल रिएक्शन ले ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुए. और रिवर्सिबल रिएक्शन माने कोन व्हिच अकर्स इन टू डायरेक्शंस दैट इज बोथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. सेटा को हमें कहबा रिवर्सिबल रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन माने रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुए जो डायरेक्शन ले दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन. आउ बैकवर्ड रिएक्शन माने प्रोडक्ट रो रिएक्टेंट फॉर्मेशन हुए जो डायरेक्शन ले दैट इज बैकवर्ड रिएक्शन. ताहाले आमर इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम. With passage of time what will happen, the concentration of reactant will decrease, so the rate of forward reaction will decrease with passage of time. Again initially so eta hala rate of forward reaction with passage of time. आउ गोटे कौन प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन इनिशियली 0 किसी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हे ही न थाए ताले धीरे धीरे प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कमिबो, प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन कोन हबो बढ़िबो. ताले प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन जते आगे प्रोडक्ट रो रेट थिला 0 किसी प्रोडक्ट नथिला, जते बेले प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन बढ़ी बढ़ी चलिबो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन टा कोन हबो बढ़ी बढ़ी चलिबो. एंड ए टाइम विल बी रीच्ड when the rate of forward reaction will be equal to the rate of backward reaction, that is called the state of chemical equilibrium. बुझी पारलो ताले स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का को ग्राफ रे शो करूची जोठी एई ग्राफटा एठी एई पोजीशन ले एई टाइम रे दिस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. दिस इज द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हला. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हला. देन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 92 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन है कार्बन रो ऑक्सीडेशन नंबर इन CH4 कंपाउंड देछि आ गोटे है CH3Cl आ गोटे है CH2Cl2 आ गोटे है CHCl3 एंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन रो ऑक्सीडेशन नंबर ये पांचटा कंपाउंड रे रेस्पेक्टिवली कौन हम ताले आमे ऑक्सीडेशन नंबर बाहर कर दबा केमती आमे ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करे जोटार आमको दरकार आमे सेटा x धरिबा आउ अदरटार आमे जणा थिबो आमको जोटा जणा अछि ता वैल्यू पुट करी कि एटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 ये सन्न ताले वर्तमान देखो CH4 रे कार्बन रो ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करिबा ताले x ये स्वर्ण ताले हाइड्रोजन लो हैला A+1 ताले चारटा अछि तो +4 × 1 ताले केते x +4 × 1 दैट इज इक्वल टू 0 हाँ ना नहीं कार्बन लो धरिले x हाइड्रोजन लो +1 चारटा हाइड्रोजन अछि तेनु +4 ताले x +4 सम ऑफ द ऑक्सीडेशन इन मॉलिक्यूल सब बेले न्यूट्रल हैला ताले सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 सो x +4 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -4 एटा तुम रिएक्शन ले पढ़ी हैला हाउ टू डिटरमिन द ऑक्सीडेशन नंबर हैला देन CH3Cl कार्बन रहला x तीनटा हाइड्रोजन अछि +3 आउ क्लोरीन रहला Cl -1 ताले दैट इज इक्वल टू 0 ताले x +2 3 - 1 that is 2 x +2 is equal to 0 x is equal to -2 हैला देन आ गोटे कंपाउंड हैला कोन CH2Cl2 कार्बन x हाइड्रोजन दीटा अछि +2 क्लोरीन दीटा अछि -2 ये सन्न हैला -2 ताले दैट इज इक्वल टू 0 so x +2 -2 that is x + 0 is equal to 0 that implies x is equal to 0 हैला then तीनटा गला आगोडे CHCl3 रे कोन हबो कार्बन रो x हाइड्रोजन +1 तीनटा क्लोरीन -3 that is equal to 0 so x - 2 is equal to 0 x is equal to +2 हैला another compound CCl4 carbon is x चारटा क्लोरीन -4 is equal to 0 so x is equal to +4 हैला ताले ऑप्शन हैला कोन हमर आंसर कोन बाहरिला -4 -2 0 +2 +4 हैला ताले ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी हैला ऑप्शन सी रे देछि -4 -2 0 +2 +4 हैला बुझ पाला देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन नंबर 101 this is a direct question from your exam last exam the half life period of a first order reaction is 10 minutes हैला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रो हाफ लाइफ पीरियड देछि 10 minutes हैला the time required for the concentration of the reactant to change from 0.08 to 0.02 m हैला
concentration टा चेंज हम 0.08 m रु 0.02 m द टाइम रिक्वायर्ड बुझिपार ताहले आमे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑप्शंस आर 10 मिनिट्स 20 मिनिट्स 30 मिनिट एंड 40 मिनिट बुझिपार ताले दिस इज ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन दैट इज 10 मिनिट द क्वेश्चन रे तुमको कौन मागिची ना टाइम रिक्वायर्ड for concentration of reactant to change from, that means initial concentration of the reactant is 0.08 m and final concentration is 0.02 m. We know for first order reaction what is the integrated rate equation, K is equal to 2.303 by T log R0 R0 by RT. Yes or no? So T is equal to 2.303 by K. Our question is हमको बाहर करिया को पड़िबो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन टू डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस. सो एटी मु टी लिखी देली एटी कि नहीं आसले को डाके ताले 2.303 by K log R0 by initial concentration divided by final concentration. ताले ए वैल्यूटा तुमको गिवन अछि 0.08 m, RT वैल्यू इज गिवन 0.02 m, K वैल्यू जदि तुम जानी गलो तुम बाहर कर दबो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एतिकी कंसंट्रेशन चेंज होबा पई. ताले T half is equal to 10 minutes. It is a fast order reaction. So what is the relationship between K and T half? Na K is equal to 0.693 by T half, that is 0.693 by T half is given 10 minutes. Yes or no? ताले वैल्यू पुट कर दियो ताले 2.303 by K, K is 0.693 divided by 10 log 0.08 by 0.02. So that implies T is equal to 2.303 divided by 0.693. 10 टा ऊपर को पड़े गला हला इनटू लॉग 0.08 by 0.02 डेसिमल उठे दियो ता माने log 8 by log 8 by 2 log 4 हला ताले दैट इज इक्वल टू 2.303 into 10 divided by 0.693 into log 8 by 2 4. So that is equal to 2.303 into 10 by 0.693 log 4 is log 2 ro square, that is log m to the power n hela log n log m. So this is 2 log 2 hela, this log 4 is 2 log 2 ro square, so this is 2 log 2. So 2.303 into log 2, that is 0.693 हला log 2 into 2.303 यार वैल्यू केते हला ना 0.693 ताले 0.693 into 10 into 2, that is 20 divided by 0.693. Already you know 2.303 log 2 रो वैल्यू हला केते ना 0.693 हला ताले 0.693 आमे एठी पुट कर देले हमर आ अछि केते 10 into 2 20 divided by 0.693 कटि गला. So answer will be 20 minute. So the correct option is B. Answer is B. हला 20 minutes. Then next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103. एटा थिला 101, दिस इज 103. The distance between two electrodes of a cell is 2.5 centimeter. हैला ताले distance means between two electrodes, that is L. L is given as 2.5 centimeter. And area of each electrode is 5 centimeter square. That means area of cross section is 5 square centimeter. Yes or no? Distance between the electrodes are given and area of each electrode is given. What is the value of cell constant? The question is, the cell constant is 2, 7.5, 12.5 and 0.5. ताले cell constant is what? Cell constant is equal to, we know, cell constant is equal to what? L by A. Yes or no? Cell constant is L by A. ताले L is 2.5 centimeter, A is 5 centimeter square. So that is equal to 1 by 2 centimeter square, that is centimeter inverse, that is 0.5 cm inverse. Yes or no? So the answer will be 0.5, that is option D. Hela, answer is option D. Right? Then we will go to next question. (107). The maximum number of molecules is present in which of the following case? को केस रे मैक्सिमम चार्टा केस तुमको देइछि, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहिबो. ताहले ऑप्शन गुडा कोन देइछि? ए रे देइछि 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP. हैला, सेकेंड ऑप्शन देइछि 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP. थर्ड ऑप्शन देइछि 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस. ऑप्शन 4 देइछि 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. हैला, चारिटा ऑप्शन देइछि, तमे बाहर करिवो को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को केस रे अधिका अछि. हैला, ताले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर करिया पई आमे गोटे गोटे ऑप्शन जिबा बाहर करिबा कोन कोठी नंबर ऑफ मोल्स आमे डायरेक्टली बाहर कर दबा कोठी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिका अछि. ताले गोटे गोटे जिबा. ए को देखो 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. We know 22.4 liter of any gas at STP occupies a volume of 22.4 liter. हैला, ताहले 22.4 liter of any gas. हैला, ताले जो गैस एटी बर्तमान कौन अछि? हाइड्रोजन. ताले हाइड्रोजन रो 22.4 लीटर केते मोल गैस ऑक्युपाई? 1 मोल. हैला, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर. ताले 1 मोल ऑफ एनी गैस जे कोनोसी तमे गैस नियो 1 मोल जदी नैचो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रे, ताले से केते वॉल्यूम ऑक्युपाई करिवो? 22.4 लीटर. गैस सबले मॉलिक्यूलर फॉर्म रे रहे, ता माने 1 मोल माने केते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 6.023 into 10 to the power 23. ताले 22.4 liter of hydrogen has molecules. केते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अछि? ना 6.023 into 10 to the power 23. हैला, 22.4 लीटर रे केते मोल गैस रहिबो? 1 मोल. 1 मोल रे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केते? ना 6.023 into 10 to the power 23. ताले 1 liter of hydrogen has molecules is equal to 6.023 into 10 to the power 23 divided by 24. Yes or no? 15 liter हमको क्वेश्चन लेके दे दीजिए. 15 liter of hydrogen has molecules is equal to 6.023 into 10 to the power 23 divided by 24
इंटू 15 बुझिपार ताले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 15 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस दैट इज इक्वल टू केते बाहरिला 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 22.4 इंटू 15 ताले वी विल गो टू नेक्स्ट ऑप्शन रे आमे बाहर करबा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ताले देखो 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एठी भी हाइड्रोजन हो नाइट्रोजन हो एनी गैस दैट विल ऑक्युपाई 1 मोल विल ऑक्युपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एनटीपी ताले ऑप्शन बी को जिबा हला ऑप्शन ए रे ऑप्शन बी रे 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हैज मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू केते नंबर मॉलिक्यूल्स अछि एनी गैस 22.4 लीटर मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 सो डायरेक्टली मु लिखि देउची 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हैज मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 5 हला एटी दिला 15 लीटर तेणु इंटू 15 एटी दिला 5 एटी दिला 5 व्हाट एवर मे बी द गैस जहाँ भी हो 22.4 लीटर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केते रहिबो ना 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 तले एदिटा रे हमें बर्तमान नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर कर देले ए बी रे तापर बाहर करबा कोडी सी और डी 22 so 22 liter of nitrogen yes it is nitrogen so 22.4 liter of nitrogen has molecules 6.023 into 10 to the power 23 so 1 liter will be have volume 6 number of molecules is 6.023 into 10 to the power 23 by 22.4 so 5 liter of nitrogen will have molecules is equal to 6.023 into 10 to the power 23 divided by 22.4 into 5 तले दीटा ऑप्शन पड़ेला हाइड्रोजन और नाइट्रोजन देन पॉइंट ऑप्शन सी 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एठी आ लिटर देनी एठी मास ऑफ देची हाइड्रोजन गैस ताहाले हाइड्रोजन रो मोलिकुलर मास केते 2 हाइड्रोजन गैस रो मोलिकुलर फॉर्म रे एग्जिस्ट करे ताले गोटे हाइड्रोजन मोलिकुल रे केतेटा हाइड्रोजन एटम अछंती दीटा हाइड्रोजन ले एटॉमिक मास हला 1 तेणु हाइड्रोजन गैस रो मोलिकुलर मास हला केते ना 2 ग्राम हला ताहाले 1 मोल माने केते मास रहिला 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम ताले 2 ग्राम रे 1 मोल बा तमरो कोन मोलिकुलर मास भितरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केते रहिबो 6.023 into 10 to the power 23 yes or no 1 mole of gas that is 1 mole of gas रो मास टाको हमें कोन कहबा तार मोलिकुलर मास ताले मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन केते 2 ग्राम ताले 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट एनटीपी yes or no हला ताले 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हला योर मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन ताले मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन भितरे केते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहउची 6.023 into 10 to the power 23 yes or no molecular mass माने केते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रो मास 6.023 into 10 to the power 23 number of molecules ताले 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज contains केते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना 6.023 into 10 to the power 23 क्वेश्चन ले केते ग्राम देइची 0.5 ग्राम ताले 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन contains number of molecules is equal to 6.023 into 10 to the power 23 by 2 into 0.5 बुझी पारलो एटा समस्ते हाइड्रोजन रो मोलिकुलर मास केते 2 काहे कि ना हाइड्रोजन H2 फॉर्म रे एग्जिस्ट करे ताले मोलिकुलर मास माने कोन मास ऑफ 6.02 एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ता माने मोलिकुलर मास माने सेथिरे केते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहउची 6.023 into 10 to the power 23 ताले 2 ग्राम रे रहिला एतिकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम रे रहिबो केते 0.5 ग्राम तमरो देइची हला तापरे डी रे कोन देइची 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस सेम थिंग ऑक्सीजन लो मोलिकुलर मास केते एटॉमिक मास हला 16 ऑक्सीजन को फॉर्म रे एग्जिस्ट करे O2 ताले गोटे ऑक्सीजन मोलिकुल रे केतेडा ऑक्सीजन एटम अछंदी दीटा ताले ऑक्सीजन लो मोलिकुलर मास केते हबो 32 ताले 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केते रहिबो सेम 6.023 into 10 to the power 23 गोटे जी भी गैस हो तार मोलिकुलर मास माने सेतरे केते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अछंदी ना 6.023 into 10 to the power 20 ताले 1 ग्राम माने केते 10 ग्राम रे केते रहिबो 6.023 into 10 to the power 23 by 32 into 10 so on solving you will see that this value
will be the highest. So maximum number of molecules will be present in 15 liter of hydrogen at STP. So the answer is A. है बुझीपार देख सबू जगह तुम देख द वैल्यू विल बी मैक्सिमम इन दिस केस है. So go to let us go to the next question. बुझीपार ना एटा 1 mole means 1 mole of any gas occupies a volume of 22.4 liter at NTP. 1 mole of gas means एतिकी number of molecules of gas. ताले फास्ट दुईटा ऑप्शन आम सेमती नहीं कि कले सेकेंड दुईटा ऑप्शन कले जे मोलिकुलर मास गोटे गैस रो मोलिकुलर मास माने सितरे केते नंबर ऑफ मोलिकुल्स अछंती 6.023 into 10 to the power 23. ताले 6.023 into 10 to the power 23 molecules of hydrogen रो मास टा हाइड्रोजन रो मोलिकुलर मास संगे समान दैट इज 2 ग्राम. सेमती एतिकी नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ ऑक्सीजन रो मास टा ऑक्सीजन रो मोलिकुलर मास ग्राम मोलिकुलर मास संगे समान दैट इज 32 ग्राम है. बुझिपार एगुड़ा सब मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स दैट इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास. ग्राम मोलिकुलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिकुल्स है. देन next question, which plot represents an exothermic reaction? चार्टा ग्राफ देछि 114 को प्लॉटटा रिप्रेजेंट करूची एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ए रे देछि हीट रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट. ऑप्शन बी heat reaction coordinate reactant product. Option C heat reaction coordinate reactant product. D heat reaction coordinate reactant product. बुझिपार एमती चार्टा ग्राफ तुमको देइछि तुमको क्वेश्चन देइछि व्हिच प्लॉट रिप्रेजेंट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. So with respect to temperature we know reactions are of two types. One is endothermic, another is exothermic. ताले endothermic reaction कौन, exothermic reaction कौन ना. endothermic reaction endo means enter into, exo means out. ताले endothermic reaction माने reactant किछि हीट रिएक्शन करिकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करिबा पाई एंडो मीन्स ताकू किछि हीट एनर्जी दरकार. यस और नो. रिएक्टेंट किछि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कले प्रोडक्ट फॉर्मेशन करिवो दैट इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक मीन्स टेम्परेचर. थर्म वाट आम कौटी यूज करे विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर. सो एंडो मीन्स द रिएक्टेंट रिक्वायर सिस्टम को एंटर करबा दरकार किछि हीट एनर्जी जहाँ फल रिएक्टेंट रिएक्शन करके कौन फॉर्मेशन करिवो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करिवो. ताले एंडोथर्मिक रिएक्शन ले रिएक्टेंट रे किछि हीट एनर्जी आमे ताकू देले से जाकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करूची. सो ऑब्वियसली हीट एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट is greater than heat energy of the reactant. कहीं ना रिएक्टेंट किसी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करूची तेणु प्रोडक्ट रो हीट एनर्जी टा रिएक्टेंट रो हीट एनर्जी ठारू अधिका. एक्सोथर्मिक रिएक्शन आमे काहा को कहिबा ना. एक्सोथर्मिक रिएक्शन रे कोन हुए एटा हला एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले कोन हुए ना सिस्टम रो किसी हीट बाहरी जाए. रिएक्टेंट जेते बेले रिएक्शन करिकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे सेही समय रे किछि हीट एनर्जी रिलीज हुए
है जमती तुम एसिडटा को वाटर ढाली एड कले गरम लगे माने कौन से रिएक्शनटा कौन है एक्सोथर्मिक हीट एनर्जी किसी बाहर ताले एक्सोथर्मिक रिएक्शन रे रिएक्टेंट रु प्रोडक्ट फॉर्मेशन हैला बेले किसी हीट एनर्जी एक्सो मीन्स सिस्टम रु आउट हो जाए है सेटा है एक्सोथर्मिक ताले एक्सोथर्मिक रिएक्शन केस रे कौन हम ना हीट एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन हीट एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट ये सर न कहीं रिएक्टेंट रु किसी हीट एनर्जी जाइए कौन फॉर्मेशन होची सिस्टम रु किसी बाहर जाऊँगी रिएक्टेंट रु प्रोडक्ट है बेले ताले प्रोडक्ट रो हीट एनर्जीटा कम को केस रे एक्सोथर्मिक रिएक्शन केस रे ताले आमे देखिबा कोठी प्रोडक्ट रो हीट एनर्जीटा कम अच्छी सेटा आमे जानिबा एक्सोथर्मिक रिएक्शन वर्तमान देखो एडा हीट एडा हला कोन रिएक्शन कोऑर्डिनेट ताले एठी कोन अछि रिएक्टेंट रो हीट एनर्जीटा अधिका अछि प्रोडक्ट रो कम अछि एठी रिएक्टेंट प्रोडक्ट समान अछि एठी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट समान अछि ताले कोठी प्रोडक्ट एठी कोन अछि रिएक्टेंट रो कम प्रोडक्ट रो बेसी एठी कोन अछि रिएक्टेंट रो बेसी प्रोडक्ट रो कम ताले आमर एक्सोथर्मिक रिएक्शन माने रिएक्टेंट थारू प्रोडक्ट रो हीट एनर्जीटा कम ये सुन ताले को केस रो प्रोडक्ट रो हीट एनर्जीटा रिएक्टेंट थारू कम अछि इन द फर्स्ट केस यू सो सी दिस इज इंक्रीज हीट एनर्जी है ताले कोठी कौन ठीक अच्छे आम ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कोटा फास्ट ऑप्शनटा कहीं यही केस रे केवल प्रोडक्ट रो हीट एनर्जीटा रिएक्टेंट थारू कम अच्छी एठी प्रोडक्ट रो हीट एनर्जीटा रिएक्टेंट थारू बेसी अच्छी एठी कौन अच्छी समान अच्छी है आमर जेहेतु एक्सोथर्मिक रिएक्शन तेणु आमर प्रोडक्ट रो हीट एनर्जीटा रिएक्टेंट थारू कम रहिबो ताले करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है आंसर इज ए है देन नेक्स्ट क्वेश्चन it means heat energy of product HR is heat energy of reactant then next question 116 in a first order reaction A to B if K is rate constant first order reaction देछि A to B K हैला rate constant and initial concentration of the reactant is 0.5 m exact question I had already given you initial concentration of the reactant is 0.5 m then half life is what is the half life period देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड और रेट कांस्टेंट भितर रिलेशनशिप है कौन 0.693/k ये सुन है बुझी पार तुम ऑप्शंस किंतु देइछि 0.693/k देइनी ऑप्शन आर log 2/k log 2 ऑप्शन एगुड़ा देइछि log 2/k B option is log 2/k 0.5 option C log 2/k option D is 0.693/0.5k sorry 0.693/0.5k so which option will be correct you see आम सीधा लिखा देख फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सीधा आम ये बाहर करदे K इज इक्वल टू कौन ना 2.303/T log R0 R0/RT ये सन है ताले वर्तमान देख आमर हाफ लाइफ पीरियड माने कौन इनिशियल कंसेंट्रेशनटा तार 1/2 होबापाई जेतिकी समय लगे सेटा हला हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन एठी आमे इनिशियल कंसेंट्रेशनटा केते नैचे R0 ताले R0 टा इनिशियल कंसेंट्रेशनटा तार 1/2 होबापाई
कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन जेतिकी अच्छी से कंसेंट्रेशनटा हाफ होवाई जेतिकी समय लगे दैट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। ताहले वर्तमान मु जदि एठी लिखिदेवी एटा गोटे एटा कोण T इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग R0 बाय RT केमिति आसिला मैं तुमको एटा कहूची। ताले वर्तमान मु T जगह लिखिदेवी T हाफ ताले T जगह मुझे T हाफ लिखिदेवी RT जगह मुझे कौन लिखी R0 बाय 2 आमर फाइनाल कंसेंट्रेशनटा केते अछि R0 बाय 2 ताले सेटा हला कोन RT आमे फाइनाल कंसेंट्रेशन धरिचे काहा को ना RT को। सो आमर जते बेले टाइमटा हाफ लाइफ पीरियड आसी गला ताले फाइनाल कंसेंट्रेशनटा सेतेले केते हे गला R0 बाय 2 हला द टाइम रिक्वायर्ड for the initial concentration of the reactant to become 1/2 of its initial value to become 1/2 of its value that is called half life period। ताले initial concentration थिला R0 by 2 होबा पई जेति की टाइम लागिला that is half life period। ताले T half is equal to 2.303 by K log R0 by R0 by 2 yes or no। बुझपार ताहले वर्तमान कौन हम सो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग 2 R0 बाय R0 ये नो दिस इज इक्वल टू कटिगला ताले दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के इंटू लॉग 2 हला लॉग 2 हला 0.3010 ताले एटा लॉग 2 रो वैल्यू पुट कर दे कि एटा पाई गले केते ना देखो एति कि 2.303 इनटू लॉग 2 बाय केते हला के वर्तमान देखो लोन हला 2.303 लॉग गोटे लोन रो वैल्यू केते ना 2.303 लॉग ताहले मु एठी 2.303 लॉग बदल रे कोन बसई देबी लोन बसई देबी ताले दैट इज इक्वल टू लोन 2 बाय के यस और नो 2.303 लॉग इज लोन 2 बाय के बा तमे एठी कला बेले को फास्ट रे 1/t लोन R0 बाय RT नहीं कि भी तमे करि पारिबो हला किंतु तमे जेतु लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन यूज करूछ एठू तमे सीधा देखि देला 2.303 लॉग हला हमर कोन लोन आ रही छि के 2 डिवाइडेड बाय के ताले हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू ln 2 बाय के द करेक्ट ऑप्शन इज सी आंसर इज सी ln 2 बाय के हला बुझ पारलो 2 or 3 questions। Next question, question number 118. Which of the following will not affect the value of equilibrium constant of a reaction? The options are कोटा affect करिबो नाही हैला change in concentration of the reactants you know equilibrium constant है equilibrium concentration of the product divided by equilibrium concentration at the equilibrium concentration of the reactants तेणु आमे concentration change कले value of equilibrium constant change होबो second change in temperature you know value of equilibrium constant changes with change in temperature kinetics रे तमे पढीचो addition of catalyst does not affect the value of equilibrium constant हैला catalyst equilibrium constant को कि तार value को किसी change करे नहीं so the correct option will be option C हैला बुझ पालो then 120 the entropy of a crystalline substance at absolute zero on the basis of third law of thermodynamics should be taken as 150 different for different substances
तुम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन द एंट्रोपी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस approaches zero at absolute zero है all the randomness ceases that is at absolute zero तेणु entropy of crystalline substance will be zero as temperature approaches zero so the correct option will be C है बुझ पाल entropy केते हम at absolute zero zero then next आ गोटे question 130 this is the question on solid state. A crystal lattice with alternate positive and negative ions has radius ratio 0.524. 0.524. Its coordination number is options are 4, 6, 3, 12. बुझी पारलो ताहाले रेडियस रेशियो आमे को केस रे बाहर करि परिबा इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड रे रेडियस रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो हैला ताले गोटे आयोनिक सॉलिड रो एडा हला रेडियस ऑफ कैटायन दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ एनायन दिस रेशियो इज कॉल्ड रेडियस रेशियो ताले इन आयोनिक सॉलिड केस रे रेडियस रेशियो वैल्यूटा आमको तार कोऑर्डिनेशन नंबर आ तार स्ट्रक्चर विषय रे इंफॉर्मेशन दिए हैला ताले रेडियस रेशियो वैल्यू जदी कोन हैला ना 0.155 रु है देख रेडियस रेशियो भैल्यू रेंजटा जदि 0.155 रु 0.225 भितर रहिला तारे कोऑर्डिनेशन नंबर हम 3 आयोनिक सॉलिड जदि रेडियस रेशियो भैल्यूटा 0.225 रु 414 भितर रहिला रेडियस रेशियो सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयोनिक सॉलिड विल बी 4 जदि 0.414 रु 0.732 भितर रहिला दैट इज 6 एंड 0.732 रु 1 भितर जदि रहिला ताले कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयोनिक सॉलिड विल बी 8 ताले तमरो वैल्यू केते देइची 0.524 माने को रेंज रे आसुची ए 0.414 रु 0.732 भितर ताले कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयोनिक सॉलिड विल बी 6 0.414 रु 0.732 ताले कोऑर्डिनेशन विल बी 6 द स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल ताले तमरो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज 103C 0.524 that comes in the range of 0.414 to 0.732 ताले एति की रेंज रहिले तमरो कोऑर्डिनेशन नंबर केते हबो 6 हला आ सेफ हला स्ट्रक्चर हला तमरो ऑक्टाहेड्रल हला बुझ पारलो सो दिस इज your end of discussion of physical chemistry portion of your OUT question 2020. Thank you all.